Okay, very good morning to all of you. Yesterday we have started our exercise 5.1. Up till question number 5 we have already completed. Now we are going to take question number 6. So I am reading the question for you. Okay, the question number 6, in question number 6, the question is if B is the midpoint of AC, if B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of line segment BD. In this question we are given with two line segment AC and BD. There are two line segments which are given to us in this question. Okay. Now, let us draw these line segments first. This is line segment, first line segment, and this is the another line segment. Okay, the first line segment is AC and the second line segment is BD. So these are the two line segments which are given to us in the questions, and it is said that ABCD lies on the straight line. ABCD lies on the same straight line. Okay, all these four points which are given to us lie on the same line. Why? Say why AB is equal to CD. हमें ये क्वेश्चन में प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है. तो as you can see in the figure, just a minute. Okay, there is a slight change in the question. I got the question, I read the other question. ठीक है, question फिर से देखते हैं. If B is the midpoint of AC, we have a line segment AC, ठीक है, and B is the midpoint of AC. Here point B is here. ठीक है, we are given a question number 6 in which B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. This and this are midpoints of two line segment. B is midpoint. B is midpoint of AC line segment. Okay, अगर B midpoint है AC line segment का, यानी जो B point है, it has divided this whole line segment into two equal parts. मतलब AB जो है वो BC के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन इन द क्वेश्चन दैट B is the midpoint. अगर if B is the midpoint of AC, therefore we can say that AB is equal to BC. ठीक है? Why? Because midpoint divides the line segment into two equal parts. Midpoint जो है वो line segment को दो equal parts में divide करता है. Since B is the midpoint of line segment AC, this B will divide the line segment into two equal parts, AB and BC. Now, moving on, we are given as C is midpoint. C is midpoint of BD. C is midpoint of line segment BD. This C has divided the line segment BD. आपको यहाँ से यहाँ तक का देखना है. ठीक है, फर्स्ट में आपको A से C का देखना था. In second part you have to see the line segment from B to D. From B to D, a point is given in between which is said to be the midpoint of line segment BD, and you have to say prove that. And also it is given that since C is the midpoint of BD, this point C will divide the line segment BD into two equal parts. ठीक है, तो C कैसे डिवाइड करेगा? BC, ये वाला जो पार्ट है, this will become equal to this part. तो BC will be equal to CD. ठीक है, BC will be equal to CD. क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट दिया था ABCD. ठीक है, first part में we were told that B is the midpoint of AC. Since B is the midpoint of AC, it will divide the line segment into two equal parts. आपको अभी यहाँ तक ही देखना है क्योंकि हम लाइन सेगमेंट AC की बात कर रहे हैं. ठीक है, and B is the midpoint of that line segment. Hence
B has divided the line segment C into two equal parts, namely AB is equal to BC. And in the second part of the question, we were given C as the midpoint of BD. अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का line segment लिखना है, okay? Now since C is the midpoint of line segment BD, it will divide this line segment into two equal parts, BC और CD. Now again the question में हमसे ये पूछा जा रहा है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा. क्वेश्चन में हमें we have to prove in question कि AB जो है क्या वो CD के बराबर होगा. ठीक है, this you have to prove. You have to prove AB क्या CD के बराबर होगा. कैसे होगा, let's see. मान लो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, AB is equal to BC is our फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है BC is equal to CD. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फॉर नाउ, आप ऐसा समझ लो. पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हमें, AB is equal to BC दिया. सेकेंड स्टेटमेंट में we have BC is equal to CD. तो क्या हम इस from this relation can we deduce that if AB is equal to BC and in the second equation if BC is equal to CD, हम क्लियरली कह सकते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में BC के बराबर है. From equation 1 and 2 हम we can say that AB is equal to CD. ठीक है, so this we have to prove in our equation. हमें ये चीज को प्रूव करना था. हमने कैसे प्रूव किया, जो हमारे क्वेश्चन में द पॉइंट व्हिच वर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, इट वाज दैट कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. अगर B मिड पॉइंट AC का, तो इट विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट AC इनटू टू इक्वल पार्ट्स, AB इज इक्वल टू BC. ठीक है, सेकंड पार्ट में वी वर गिवन C एज द मिड पॉइंट ऑफ BD. C जो है वो मिड पॉइंट है BD का. तो C जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो इट विल डिवाइड इट एज BC इज इक्वल टू CD. ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट हो गई. तो इन्हीं से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर AB इज इक्वल टू BC है और BC इज इक्वल टू CD, तो हम AB को CD के बराबर लिख सकते हैं. ऐसे भी समझ लो, अगर 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 3 है, समझने के लिए बस है, दिस इज फॉर एग्जांपल. तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 1 जो है वो 3 के इक्वल भी होगा. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3, तो आप ये कह सकते हो जो 1 है इज आल्सो इक्वल टू 3. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज. बेटा इस क्वेश्चन में वी वर एक हमें स्ट्रेट लाइन दी थी ABCD. ठीक है, ऑल द 4 पॉइंट्स वर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, फिर इन द क्वेश्चन वर गिवन एज B is the midpoint of AC. See in the question it is written B is the midpoint of AC. ये हमारे पास लाइन सेगमेंट AC है, B इसका ये मिडपॉइंट है. जो पॉइंट मिडपॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये वाला जो पार्ट है AB वाला पार्ट वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के. तो AB is equal to BC हो गया. इतना समझ में आया. उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि जो C है वो भी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट BD का. C जो है वो लाइन सेगमेंट B और D का मिड पॉइंट है. यानी अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है. इस वाले क्वेश्चन को भी हमें नहीं देखना है. हमने यहाँ पे देखा C जो है वो बीच में लाई कर रहा है. क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट C इज द मिड पॉइंट. अगर C जो है मिड पॉइंट हो गया तो ये क्या करेगा, ये पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा. तो कैसे बांटा इसने, BC इज इक्वल टू CD हो गया. ठीक है, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट पे हमें ये पता चला है कि AB जो है व्हिच इज इक्वल टू BC. सेकंड स्टेटमेंट में वी हैव BC इज इक्वल टू CD. तो क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, अगर AB को BC के बराबर और BC को CD के बराबर, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो AB है वो CD के बराबर होगा. बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं AB और CD ये किसके बराबर है, BC के बराबर है. तो हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ये लिख सकते हैं जो AB है वो CD के बराबर है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके.
Voice mode. अच्छा, keep your mouth mute. Yourself mute. Voice mode. Now we are moving on to the next question of the exercise. Beta, geometry is an abstract mathematics. ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में पढ़ते हो उस तरह की मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन भी यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, दैट इज व्हाई ज्योमेट्री को एडवांस मैथमेटिक्स कहा जाता है. यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन. क्या गिवन है, कैसे हम उसको पुट करें कि हम अपने प्रूफ तक पहुंच जाए. दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन ज्योमेट्री. ठीक है, डायरेक्ट आपको फिगर्स नहीं दिए होंगे, नंबर्स अभी तक आपने देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसमें आपको डिजिट्स नहीं दिख रहे होंगे, आपको सिर्फ लाइंस दिख रही होंगी, लाइन सेगमेंट्स दिख रहे होंगे. ठीक है, तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट प्रूविंग दीज लाइंस, लाइन सेगमेंट. ये थोड़ी सी अब्स्ट्रैक्ट होती है, एडवांस लेवल की होती है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न दी concepts. Okay, now we have the last question of our exercise. In this question we have to draw 5 triangles and measure their sides. In this question we have to draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if sum of the lengths of the two sides is always less than the third side. Check in each case if sum of the length of the two sides is always less than the third side. ट्रायंगल्स जब हम पढ़ते हैं, पहले तो आप ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझ लो. ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम तीन साइड्स कोई भी ट्रायंगल की लेते हैं, तो ये सपोज वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल दिस. ठीक है, वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल दिस. Okay, this is the triangle. Let me draw it again. ये triangle है, for example. It has 3 sides. Let us name it A, B और C. तो triangle, किसी भी triangle को जब भी आप triangle बनाओगे तो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है. हम इसको सपोज AB जो है वो triangle की फर्स्ट साइड है, BC जो है वो triangle की सेकंड साइड है और AC जो है वो triangle की थर्ड साइड है. कोई भी triangle only then will be formed. A triangle is only formed when the sum of two sides is greater than the third side. Only then a triangle will be formed. जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, only then a triangle will be formed. ठीक है, ये कंडीशन होती है. जो इस फिगर के लिए हम कह सकते हैं कि दो साइड्स का सम, कोई भी दो साइड्स होती है, वो 1 और 3 भी हो सकती है, 1 और 2 भी हो सकती है, 2 और 3 भी हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग. पर कोई भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. मान लो कि मैंने 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ये है ट्रायंगल. ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का ये ले लिया और ये 1 सेंटीमीटर का ले लिया. ठीक है, तो क्या ये देखो, ये हमने ट्रायंगल ले लिया 5 सेंटीमीटर का है. ये ट्रायंगल की एक साइड हमने ले ली 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड ले ली मैंने 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 5 + 7 कितना हो गया? 5 + 7 is 12. 5 + 7 कितना हो गया? 12 हो गया. Just a minute. So 5 centimeter plus 7 centimeter is what? It is equal to 12 centimeter. ठीक है, तो क्लियरली अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर की होगी तभी ये जो एंड पॉइंट्स है वो मिल पाएंगे. ठीक है, ये साइड को हमें कितनी सेंटीमीटर की बनाना है? 12 सेंटीमीटर की बनाना है, तभी जो है ये यहाँ से यहाँ तक मिल पाएगा. ठीक है, ये लाइन जो है वो आपकी 12 सेंटीमीटर के नीचे. अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊँ तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा? क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा?
नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये मिल ही नहीं रहे। यहाँ पे आपको कितने सेंटीमीटर की जरूरत है, 12 सेंटीमीटर की, लेकिन आप कितना लेना चाह रहे हो, 2 लेना चाह रहे हो, तो क्या आपका ट्रायंगल जो है यहाँ पे ज्वाइन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे ये जो खाली एरिया रह गया है, ये जब तक ज्वाइन नहीं होगा तब तक क्या है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमेशा कहा जाता है कि सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दोनों साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। या आप इससे छोटा भी ले लोगे तो भी नहीं बनेगा, अगर आप इसको 13 सेंटीमीटर का ले लोगे तो भी नहीं बनेगा। अगर हमें रिक्वायर्ड कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा की साइड ले लोगे तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो लाइन बाहर चली जाएगी। तो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए कि जो कोई भी दो साइड है उनका जो सम होता है, सम मतलब होता है एडिशन, सम मतलब होता है एडिशन, the sum of these two sides should be greater than the third side, okay, तभी only then a triangle will be formed। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है। in the question we are asked to draw such a triangle, क्वेश्चन में हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें 5 आपको एक्चुअली ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं और उनकी साइड्स को मेजर करना है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी खुद घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू योरसेल्फ एट होम। आप क्या करोगे, 5 ट्रायंगल्स लेना, यू हैव टू टेक 5 ट्रायंगल्स, पांचों ट्रायंगल्स की लेंथ को अलग-अलग ले लेना, ठीक है, 5 ट्रायंगल्स लेना, सबकी लेंथ अलग ले लेना, ठीक है। किसी को ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इस तरह से बनाना। मेक श्योर कि आप ये जो सेंटीमीटर है उसको जरूर मेंशन करें। उसके बाद आपको खुद ही चेक करना है कि आपने ये वाली साइड या ये वाली साइड को जब ऐड किया तो क्या वो तीसरी साइड के सम के बराबर थी, बड़ी थी या छोटी थी। या आप एक्टिविटी खुद ही करके देखोगे और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको ये मुझे सारे रिजल्ट्स बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू इट योरसेल्फ। यू विल हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल्स, और आपको खुद चेक करना है कि दो साइड का जो सम है क्या वो तीसरी साइड के सम के बराबर है, इक्वल है या कम है। जब आप ये खुद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो मैंने फैक्ट अभी बताया कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रूव तभी हो पाएगा जब आप खुद से करेंगे। ओके, सो विद दिस वी फिनिश आवर with this we finish our exercise 5.1 in which question number 7 you have to do it yourself because it is an activity based question। जब आप करोगे तभी आप मेजरमेंट्स को देख पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तभी वो इतना okay, now we are going to learn a new topic। we are going to learn about angles। what are angles? straight angle क्या होता है और एक right angle क्या होता है, ठीक है। this we are going to learn today। now we are going to learn about angles, ओके। दो तरह के एंगल्स के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल, राइट एंड स्ट्रेट, ठीक है। these two about these two angles we are going to study about right angles and about straight angles। ज्योग्राफी में मैम मैप्स पढ़ा रही है, सबको पता है, मैम ने मैप्स पढ़ाए हैं, डायरेक्शंस के बारे में उन्होंने बताया होगा, ठीक है। ये हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, let me draw it again। these are the 4 directions which we have, okay। so this is north, this is east, this is south and this is west। so these are the 4 directions which we have, north, east, west and south, okay। हम सबको पता है कि सन किस डायरेक्शन से राइज होता है, सन राइजेस इन दी ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, इट सेट्स इन दी वेस्ट, ठीक है। सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, आप अपना जो फेस है, और एक और चीज है, मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था। सपोज दिस इज आवर क्लॉक, ये इस पे टाइमिंग्स लिखे होते हैं 12, 6,
3 और 9। जब आप क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपकी पोजीशन को क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्लॉक कैसे घूमती, पहले 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो जो चीज इस तरह से मूव होगी उसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, क्लॉकवाइज। और जो क्लॉक हमारी, सपोज दिस इज आवर क्लॉक, हियर इट इज 12 6 3 एंड 9। हमारी क्लॉक की डायरेक्शन ऐसे होती है, लेकिन हम कैसे मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन के उल्टा। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। when you are moving in along with the direction of the clock, अगर आप क्लॉक के साथ की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब अब आपकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉक क्योंकि इस तरह मूव करते हैं और हम उल्टा चल रहे हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम यहाँ से उल्टा चल रहे हैं, पहले 9 पे आ रहे हैं, 8 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं, 6 पे आ रहे हैं, इस तरह से ऑपोजिट चल रहे हैं to the direction of the clock, then this is called as anti-clockwise। ठीक है, तो there are two types of direction, anti-clockwise और clockwise। अब now look here, ठीक है, suppose we are standing here, हम नॉर्थ में ऐसे खड़े हैं, ठीक है, like consider me as standing on the north। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमती हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे घूमूँ, ये डायरेक्शन क्योंकि मैंने क्लॉक के अराउंड घूमी है, देखो 12 से 3 पे आई है, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, ये होगी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने कैसे घुमा है, क्लॉकवाइज। ओके, फिर मैं यहाँ पे घूम के यहाँ ईस्ट पे पहुंची, पहले मैं नॉर्थ पे थी, फिर मैंने इतना टर्न लेके मैं मैंने राइट टर्न लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहाँ ईस्ट पे पहुंच गई। ठीक है, फिर मैं अब ईस्ट पे खड़ी हूँ, फिर मैंने एक टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, ये डायरेक्शन कैसा, ये टर्न कैसा हुआ, ये टर्न भी कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। अब मैं कहाँ पहुंच गई, मैं साउथ में पहुंच गई। तो मैंने पहले नॉर्थ से जो ईस्ट का टर्न लिया उसमें एक एंगल बना। एंगल कैसे बना, हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल जो होता है वो दो रेज के बीच में बनता है, ठीक है, जिनका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई, इन दोनों के बीच का जो कॉमन वर्टेक्स होता है वहां पे हमारा एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, जहाँ पे आपकी जो टू रेज है वो एकदम स्ट्रेट होंगी, नॉर्थ इज स्ट्रेट, ईस्ट इज स्ट्रेट, दोनों रेज स्ट्रेट है। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू स्ट्रेट रेज, राइट एंगल। ठीक है, आप देखोगे तो इसकी पोजीशन एग्जैक्टली स्ट्रेट है, ये ऐसा सीधा है, ये ऐसा सीधा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज द राइट एंगल, सीधा बन रहा है, ये ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है, इट इज व्हाट, इट इज स्ट्रेट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट जब हम मूव कर रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल फॉर्म हो रहा था, दैट एंगल इज व्हाट, दैट एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम जब यहाँ पे पहुंच गए, हम जब ईस्ट से पहुंचने के बाद जब हम साउथ पे आए तब भी हमने एक राइट एंगल फॉर्म किया। हम ईस्ट पे पहुंचे और साउथ पे आए, ये ईस्ट था और ये साउथ था। यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म, यहाँ पे भी एंगल एक फॉर्म हुआ। वाई? क्योंकि ये भी तो दो रेज हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स से निकल रही है, ये वाली भी एक रे है और एक ये वाली भी एक रे है, दोनों एक कॉमन वर्टेक्स से निकल रही है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। कैसा एंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल। राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू स्ट्रेट रेज, दो स्ट्रेट रेज के बीच में एक राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। यानी हमें यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में पहुंचने में हमने कितने राइट एंगल्स को बनाया। पहला राइट एंगल कब बना, यहाँ पे बना जब हम नॉर्थ से ईस्ट पहुंचे। दूसरा राइट एंगल कब बना, जब हम ईस्ट से साउथ पहुंचे। तो नॉर्थ से साउथ आने में हमने कितने राइट एंगल्स को बनाया, नॉर्थ से साउथ आने में हमने दो राइट एंगल्स को बनाया। ठीक है, इसको और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन थी। दिस वाज आवर नॉर्थ, दिस वाज आवर ईस्ट, दिस वाज साउथ एंड दिस वाज वेस्ट। ठीक है,
एरोस क्यों लगाए? क्योंकि नॉर्थ आपको पता नहीं कहाँ पे खत्म हुआ, ईस्ट आपको पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता, लेकिन आप इस एंड में और एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए मैंने वहाँ पे एरो लगाई। और ये एक रे है, ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ हम मूव हुए तो हमने राइट एंगल फॉर्म किया, पहला राइट एंगल। जब हम ईस्ट से साउथ में आए तो हमने एक दूसरा राइट एंगल फॉर्म किया, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ में आने में हमें कितने राइट एंगल्स मिले? नॉर्थ से साउथ आने में हमें 2 राइट एंगल्स मिले। तो राइट एंगल्स को आपको क्लियर हो गया, राइट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्ट्रेट रेज। नॉर्थ और ईस्ट 2 स्ट्रेट रेज थी, इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? राइट एंगल। ईस्ट और साउथ स्ट्रेट रेज थी, जब हमने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल तो क्लियर है। जब हम टोटल में देखें, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करके देखें, ये इस केस में मैंने जो अपना डायरेक्शन है मैप का उसको सीधा कर दिया है, ठीक है। ये अब आपका ईस्ट हो गया, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने किया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ हमने पहला राइट एंगल फॉर्म किया था, यहाँ हमने दूसरा राइट एंगल फॉर्म किया। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल ये होता है जब आप नॉर्थ से साउथ गए ना, तो आपने जब 2 राइट एंगल्स को कवर किया तो ये कंप्लीट एंगल जो आपको मिला वो ये था। जब हमने नॉर्थ और साउथ को इस तरह से टेढ़ा करके देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। तो आप जब आप डायरेक्टली अगर देखना चाहो दोनों को मिला करके आप नॉर्थ और साउथ के बीच में कितने एंगल्स फॉर्म हुए? 2 राइट एंगल्स। लेकिन जब हम इन दोनों राइट एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमें एक ये कंप्लीट एंगल मिलेगा। तो जो ये कंप्लीट एंगल होता है इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होंगे? 2, ठीक है। कैसे? हम स्ट्रेट एंगल में देखो, हमने जब नॉर्थ से ईस्ट गया तब हमने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारा एक राइट एंगल हुआ। जब हम ईस्ट से साउथ की तरफ गए तो हमने एक राइट एंगल बनाया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ जाना चाहें तो हम इस तरह का कवर करेंगे पूरा, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसे जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है इसमें कितने राइट एंगल्स आपको दिख रहे हैं? 2। तो जो 2 राइट एंगल्स को जब जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, ठीक है। पहला राइट एंगल ये हो गया, दूसरा राइट एंगल ये हो गया। हमें पहले केस में तो नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, फिर ईस्ट से साउथ जा रहे हैं, तो हमें 2 राइट एंगल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हम ये डिस्टेंस ऐसे कवर करेंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन में ये ऐसा एंगल बनेगा। आपको ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन कैसे दिख रही है? स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन में एंगल ऐसे बनता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जब हमने नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल बनाया था तो क्या ये लाइन स्ट्रेट दिख रही है? नहीं दिख रही, ये यहाँ पे ऐसी मुड़ी हुई है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। और अगर ऐसी कोई लाइन पे एंगल बनता है तो ये होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल ऐसे बनता है, राइट एंगल ऐसे बनता है। ये फिगर याद रखना। स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है ऐसे, और राइट एंगल 2 लाइंस पे ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक लाइन होगी लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो ये वाली होगी, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। ओके, तो एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होंगे? एक स्ट्रेट एंगल्स में 2 राइट एंगल्स होंगे। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स विल बी देयर। ओके, अब आप अपने हाथों को भी स्ट्रेच करके देखोगे ना तो आपको स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल का कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे ये मेरा एक ये हैंड है और एक ये हैंड है, तो ये इस दोनों हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? दोनों हैंड्स के बीच में बन रहा है राइट एंगल, ठीक है। जब हम स्ट्रेट ऐसे खड़े होते हैं पीटी के वक्त तो अब कौन सा एंगल बन रहा है? बिटवीन माय 2 आर्म्स अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्मिंग बिटवीन माय 2 आर्म्स। आप पीटी करते हो ना, एक हाथ ऊपर रखते हो, फिर एक हाथ ऐसे करते हो, दोनों हाथ को अपने सर के ऊपर ऐसे रखते हो, तो ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है। और जब आप पीटी करते हो दोनों हाथ को सीधा रखते हो तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। देखो, ये डायरेक्शंस को हम एक बार फिर से देखते हैं। ये वाला एक एंगल हमारा बना कैसा? स्ट्रेट एंगल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कैसा बना? एक स्ट्रेट एंगल। तो दोनों स्ट्रेट एंगल जब मिल गए
तो आपने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया। एक चक्कर आप पूरा कब कंप्लीट करोगे? जब आप यहाँ से शुरू करोगे और वापस यहीं पे खत्म करोगे, तब आपका एक कंप्लीट चक्कर पूरा होगा। रेवोल्यूशंस और रोटेशंस को हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जब जो सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा के आ जाती है, ऐसे 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 चक्कर लगाती है ना, जब वो एक चक्कर को पूरा कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, जब सन जो है अर्थ जो है सन के एक कंप्लीट पूरे चक्कर को लगाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरह से मैथ्स में भी अगर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया है, मैं ये पूरा कंप्लीट करके वापस इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो मेरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, तो जब मैंने ये सारा कवर कर लिया, उसी को मैं क्या बोलूंगी? कंप्लीट एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना ये रेवोल्यूशन था उसको पूरा कर दिया। तो कंप्लीट एंगल में आपको कितने स्ट्रेट एंगल्स मिलेंगे? पहला स्ट्रेट एंगल ये वाला होगा, मैं यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स की बात कर रही हूँ, और दूसरा स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो एक कंप्लीट एंगल को पूरा करने में आपको दो स्ट्रेट एंगल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये हिस्सा पहले कंप्लीट किया, फिर ये वाला हिस्सा, तो दो स्ट्रेट एंगल्स मिले हमें एक कंप्लीट चक्कर को पूरा करने में। अब आपको सोचना चाहिए कि एक कंप्लीट एंगल के लिए हमें दो स्ट्रेट एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक कंप्लीट एंगल के लिए हमें कितने राइट एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी देख लेते हैं। देखो, ये है यहां से यहां तक पहला राइट एंगल, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहां से यहां आए दूसरा राइट एंगल। ओके, यहां से यहां गए तीसरा राइट एंगल, यहां से यहां गए चौथा राइट एंगल। ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर को पूरा करने में हमने कितने राइट एंगल्स को पूरा किया? 1 2 3 4, यानी एक कंप्लीट एंगल को बनाने में कितने राइट एंगल्स लगे? 4 राइट एंगल्स लगे। ठीक है, one complete angle is equal to how many right angles? One complete angle is equal to 4 right angles. ठीक है, आप you can yourself deduce it कि आप नॉर्थ से ईस्ट तक you have completed one right angle. आप ईस्ट से साउथ आए, you have completed second right angle. साउथ से वेस्ट गए, थर्ड राइट एंगल पूरा किया। वेस्ट से नॉर्थ गए वापस, क्योंकि हमने शुरू यहीं से किया था तो हमें यहीं पे खत्म करना, तो हमने एक और राइट एंगल किया। तो ये कंप्लीट सर्कल को, कंप्लीट रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए हमने कितने राइट एंगल्स की हेल्प ली? 4। तो एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होंगे? 4। अब उसी तरह से अगर हम स्ट्रेट एंगल्स की बात करें तो स्ट्रेट एंगल्स कैसे देखेंगे? दो राइट एंगल मिला करके स्ट्रेट एंगल्स बनते हैं। तो अगर 4 राइट एंगल्स हैं तो स्ट्रेट एंगल्स ऑब्वियसली 2 होंगे। ठीक है, यहां से यहां गए एक स्ट्रेट एंगल मिला, फिर यहां से यहां गए दूसरा स्ट्रेट एंगल मिला। तो एक कंप्लीट, क्योंकि हमने यहां से शुरू किया था नॉर्थ से, तो हमें वापस भी नॉर्थ पे ही आना था। तो एक कंप्लीट एंगल को पूरा करने में कितने स्ट्रेट एंगल लगे? एक कंप्लीट एंगल को पूरा करने में 2 स्ट्रेट एंगल लगे। और एक कंप्लीट एंगल को पूरा करने में कितने राइट एंगल्स लगे? 4। स्ट्रेट एंगल्स कितने लगे? 2, क्योंकि हमें पता है जब दो राइट एंगल्स मिलते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ये और ये राइट एंगल मिला तो हमें ये स्ट्रेट एंगल मिला। तो जब राइट एंगल्स 4 लग रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल्स ऑब्वियसली 2 लगेंगे। ठीक है, ये वाला जो पूरा, ये मैंने आपको डायरेक्शन के हेल्प से बताया, ये आप बहुत इजीली अपनी क्लॉक में भी देख सकते हो। 12 ये देखो, ये हमारी क्लॉक समझ लो है। ओके, सपोज दिस इज योर क्लॉक, यहाँ पे बज रहे 12, 3, 9 और 6। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पे 1 2 4 और 5, यू हैव 6 here and 9, sorry 7 here, 8 here, 9 here and 10 here and 11 here।
ठीक है, ये एक राइट एंगल हो गया। 12 से 6 के बीच में आपको पहला राइट एंगल मिल गया। 3 से जब 6 बजा तो आपको आपका दूसरा राइट एंगल मिल गया। 6 से फिर 9 बजा, क्योंकि ये जो एंगल्स आप देख रहे हो दोनों जो आर्म्स है रेस की, ये these are what, these are straight। ये आपको तीसरा राइट एंगल मिल गया। जब 9 से 12 बजा फिर तो आपको आपका चौथा राइट एंगल मिल गया। तो जो भी चीजें मैंने आपको डायरेक्शन के थ्रू समझाई आप उसको क्लॉक में बहुत इजीली देख सकते हो, क्योंकि राइट एंगल कब बनेगा, जब दो आर्म्स स्ट्रेट होंगी। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, जब दो आर्म्स इस तरह से हमें एक ही लाइन पे दिखाई देगी, कोई उनके बीच में आपको एंगल दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल कब होगा, जब किसी की जो दूसरी साइड है उस पर हम ऐसा गोल एक रेवोल्यूशन पूरा करेंगे। तो जब घड़ी जो है उस 12 से शुरू होकर फिर 12 पे जाती है तब वो एक कंप्लीट एंगल को पूरा करती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे 24 घंटे पूरे हो गए। रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे जब घड़ी वापस आके उस पर रुकती है तो हमारा एक चक्कर एक दिन पूरा होता है, जिसमें हमें कितने आवर्स मिलते हैं, 24 आवर्स मिलते हैं। 12 घंटे सुबह के और 12 घंटे शाम को। तो आज आप क्या करोगे, आप अपनी घड़ी को देखोगे, उसमें देखोगे खुद कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, कितने स्ट्रेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज स्टडी टुमारो।